Good morning. Today we will study about the hybridization in C2H2. C2H2 we call it ethyne because it contains carbon triple bond carbon, carbon triple bond carbon. Okay, the another name of this is acetylene. Acetylene. Acetylene is actually the old name or trivial name of the ethyne molecule. Now if we see, it is having sp hybridization in this, and we will try to understand with the help of this theory. So in the formations of ethyne molecule, both the carbon atoms undergoes sp hybridizations having two unhybridized orbitals py, pj, px. Okay, how these two carbons, they are having two unhybrid orbitals, or we can say atomic orbitals py and px, and this is definitely second. Okay, the valence shell is the second for the carbons. One sp orbitals of the one carbon overlaps axially with sp orbitals, sp hybrid orbital. तो एक इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे के हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंबाइन होगी. ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे के हाइब्रिड ऑर्बिटल से कार्बन की कंबाइन होगी. ठीक है, एंड नाउ दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. इससे क्या बनेगा? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा इससे. एंड देन while the other unhybridized orbitals of the each carbon overlap axially with the half filled s orbitals of the hydrogen atom forming the sigma bond. अगेन एक और हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है. तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन गया है. एंड देन डेफिनेटली बिकॉज s is spherical, and now you can see in this figure this hydrogen will also combine with the axially with the carbon orbital, and carbon p orbital will be there, and that's why again one more hydrogen one more sigma bond will form with this carbon. ठीक है, तो ये कार्बन, अब इसको मैं इधर बना रहा हूँ, पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ. now I am extending this also. Now what will happen over here? Again one carbon and hydrogen they will combine. ठीक है, तो यहाँ पे एक और सिग्मा बॉन्ड बनेगा. तो इस तरह से अभी हमने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ी. दिस इज अगेन sp हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज अगेन sp हाइब्रिडाइज कार्बन. ठीक है, each of two unhybridized p orbitals of the both. Now you can see this is the diagram of the formed sigma bond. Now the sigma bond is there between carbon and carbon, carbon and hydrogen, carbon and hydrogen. ठीक है, total 3 sigma bonds are there in ethyne molecule or acetylene molecule, right? ठीक है, total 3 sigma bonds are there in acetylene molecule or ethyne molecule. Now we see the next. Each of two unhybridized p orbitals of both the carbon atoms overlap sidewise to form the pi bond. As we are aware, always the pi bond will be formed by sidewise overlapping. ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवाइज ओवरलैपिंग की वजह से. तो यहाँ साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है किसमें? टू पाई बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स. सो द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इज मेड अप ऑफ वन सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी. अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा ही रहेगा. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा, इसमें एक पाई. ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो डेफिनेटली द मिडिल वन विल बी सिग्मा एंड देन 2 विल बी द पाई. ठीक है, so this again they have explained. Now we can see from the figure also, and this is actually the sidewise overlapping which is taking place, and px and py. ठीक है, तो px py दोनों के अंदर ही साइडवाइज ओवरलैपिंग भी होगी, साथ साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग भी होगी. किसमें? sp हाइब्रिडाइज में, sp हाइब्रिडाइज में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी. So now we can see actually like pi bonds they are present above and below the plane. ठीक है, पाई बॉन्ड क्या है? एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का जो अबव और बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है. तो नाउ इन दिस फिगर ऑल्सो वी कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स. टोटली 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स. ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे. दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2. द बॉन्ड एंगल बिटवीन C2H2 विल बी 180 and hybridization type will be sp. Right, now we understand the next subtopic, that is hybridizations of element involving d orbitals. Now we are considering one more or the next orbital after s and p we have studied, and अब हमें d orbitals के atoms molecules देखने हैं जिनके अंदर ऐसे
एलिमेंट जिसके अंदर डी एटम भी इन्वॉल्व, डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएगी, और वो फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मतलब शेप चेंजेस हो जाएंगी आफ्टर दिस। Now we understand the hybridization of the elements involving the d orbitals. The elements present in the third period, definitely they have the d orbital in addition to the s and p orbitals also. The energy of the 3d orbitals are comparable to the energy of the 3s and 3p. So that we have studied कि 3s 3p 3d, तो these when the third period come तो इनकी एनर्जी कंपेरेबली इक्वल होती है, ठीक है। 3d 3s 3p 3d सबकी एनर्जी कंपेरेबली इक्वल होती है। एंड द एनर्जी ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स और आर ऑल्सो कंपेरेबल टू दैट ऑफ 4s एंड 4p। अब 3d की एनर्जी 4s 4p के लगभग इक्वल है, कंपेरेबल है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रहेगी? 3s 3p 3d में। अगर वैसे तो एनर्जी लगभग इक्वल है क्योंकि वो एक ही पीरियड के अंदर है, बट 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। अब जो 3d की एनर्जी जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो सबसे ज्यादा हो रही है, तो अब ये 3d की एनर्जी किसके बराबर होने जा रही है? 4s और 4p के बराबर। तो नाउ यू अंडरस्टैंड ये हम क्यों कहना चाह रहे हैं एनर्जी के बारे में। वी सी द नेक्स्ट लाइन। As a consequence, the hybridization involves either 3s, 3p, 3d और 3s, 3d, 4s, 4p। तो इन तरह के एलिमेंट्स में जो सेंट्रल एलिमेंट अगर हम कहें, या इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो 3s की भी होगी, 3p की भी होगी, 3d की भी होगी। इफ रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू 4s एंड 4p, वो भी चलेगा क्योंकि इनकी एनर्जी सबकी लगभग बराबर है। और ये मेन प्रिंसिपल है हाइब्रिडाइजेशन का कि द ऑर्बिटल्स व्हिच आर गेटिंग इंटरमिक्स्ड और हाइब्रिडाइज देयर एनर्जी शुड बी ऑफ कंपेरेबल्स फ्रेंच, ठीक है। हाउएवर सिंस द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 3p एंड 4s इज सिग्निफिकेंट, हाँ 3p और 4s का सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नो हाइब्रिडाइजेशन विल इन्वॉल्व 3p 3d 4s। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनेगा जिसके अंदर 3d भी आएगा, 3p भी आएगा और 4s भी आएगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है। ये समझ रहे हो? ऐसे एनर्जी होता है लेवल, जैसे 4s का यहाँ, 4p का यहाँ, और सॉरी 3s का यहाँ, 3p का यहाँ, ठीक है, 3s का यहाँ। अगर इफ आई रिप्रेजेंट दिस एंड ओवर हियर इट विल बी 4s एंड देन इट विल बी 4p, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफरेंस होता है। अब क्या कहना चाह रहा है? इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है, इसकी इसकी इसकी, ठीक है बात है, इनकी सबकी एनर्जी कंपेरेबल है। बट अगर मैं इसको ही इफ आई टेक 3p एंड इफ आई कंपेयर दैट विद व्हाट, विद इफ आई टेक 3p, इफ आई कंपेयर दैट 3p विद 4s, इसके साथ डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंसेस दिया, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट, ठीक है, एनर्जी है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इसलिए कोई भी ऐसा पेयर नहीं बनेगा जिसके अंदर ये सारी आ जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने एनर्जी, क्योंकि हमने एक्साइटेशन की बात कर ली और हमने एनर्जी पेयर की बात कर ली। द इंपोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इन्वॉल्व्स sp-d ऑर्बिटल्स आर समराइज्ड बिलो। अगर हम देखते हैं dsp2 रहता है, dsp2 रहता है, ठीक है, सिर्फ एक d की ऑर्बिटल है और sp2 है, तो वो अब sp2 की शेप क्या होती थी? ट्राइगोनल प्लेनर। उसकी शेप से क्या शेप बनेगी? स्क्वायर प्लेनर रहेगा वो प्लेनर ही, बट उसकी शेप क्या बनेगी? ट्राइगोनल, ट्राइंगल शेप से उसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट विल बी कंबाइंड ds प्लस p, p के अंदर 2 ऑर्बिटल कंबाइन होगी। एग्जांपल इज PtCl4 प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, PtCl4 प्लेटिनम के ये जो कंपाउंड होता है दैट वी आल्सो गिव इन कैंसर, एंटी कैंसर थेरेपी के अंदर प्लेटिनम के कंपाउंड। सो like if we add ammonia, 2 chloride, then this becomes the cisplatin. We use this kind of molecule in cancer therapy, okay. And the hybridization they contain is sp2 hybridizations, and the shape they are square planar. अब now we understand if sp3 and d, sp3 के अंदर d ऐड कर देंगे तो sp3 के अंदर क्या शेप आ रही है? टेट्राहेड्रल। हमने d को और ऐड कर दिया है, तो टेट्राहेड्रल से उसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। tetrahedral shape से now from the tetrahedral shape the shape of the molecule will become trigonal bipyramidal, ठीक है जी। we understand the next। अगर हम 2d ले आए और sp3 रखें तो अब जो बाइपिरामिडल है और वो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल से 3 से 4 हो जाएगा, दैट एक्चुअली बिकम स्क्वायर, ठीक है। 3 से 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी तो हमने ये देखा था sp2 का क्या है? ट्राइगोनल प्लेन, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। देखो मैं इसको लिख के हम बताता हूँ नेक्स्ट स्टेज। sp2 sp3 ये हमें अच्छे से आते हैं। sp2 की क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, राइट।
अब ये जब ये ट्राइगोनल प्लेनर है sp2, तो अब हम देखते हैं sp3 क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है sp3 की शेप। अब मैंने sp2 में इसको मैंने किस में चेंज कर दिया और इसको मैंने किस में चेंज कर दिया। sp2 shape is trigonal planar. Okay, now we add one more orbital that is dsp। तो इसके अंदर हम d ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ट्राइगोनल से ये क्या हो जाती है, ये बन जाता है स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसी शेप आ जाएगी कुछ स्क्वायर, तो इसको कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसको कहेंगे हम स्क्वायर प्लेनर, राइट। अब मैं क्या ऐड कर रहा हूं, dsp3, या वी कैन राइट इट sp3d। ठीक है, अब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं sp3d, तो अब टेट्राहेड्रल से क्या शेप आ जाएगी, टेट्राहेड्रल से एक्चुअली शेप टेट्राहेड्रल ना होकर के, अब एक टेट्राहेड्रल में कितने पिरामिड होते हैं, एक। अगर हम ढंग से, मतलब एक क्यों कह रहा हूं मैं, मेनली दीज, ये 3 पे, ये नीचे की तरफ 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच करते थे हम मीथेन के अंदर। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक ही वो है, एक ही हाइड्रोजन है इस साइड पे अबव द प्लेन। तो अब यहाँ पे दिस विल टेक, क्योंकि हमने एक और ऐड कर दिया है, तो ये इसलिए क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल बाई मतलब 2 बाई पिरामिडल। ठीक है, इसकी शेप आ जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। इसकी शेप आ जाएगी, ये थी CH4 की शेप, जो अगर हम नीचे की तरफ देखें तो द टोटल 3 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन मीथेन। Now, because one more d orbital has been added, that it will take the shape of trigonal bipyramidal, right? Now we understand the shape of the next, that is sp3d2, sp3d2, sp3d2। अभी तक sp3 की वही शेप रहेगी, क्या, sp3 की शेप ये टेट्राहेड्रल थी, sp3d2 हम बना रहे हैं। तो अब ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इससे जो शेप आएगी स्क्वायर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अभी पिरामिड अभी भी है, अभी भी पिरामिडल अभी भी शेप है। ठीक है, मतलब अभी भी वो एक्चुअल दैट इज ए 3D शेप एंड द पिरामिडल पार्ट इज प्रेजेंट। और ये किस तरह के अंदर होता है, sp3d2। अब टोटल हमें टोटल कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर कितने होने चाहिए टोटल, 2 3 + 2 5 + s। तो टोटल एक्चुअली 6 एटम्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, 6 एटम रहेंगे, BrF5। 5 तो हो गए फ्लोरीन के एटम और एक हो गया सेंट्रल एटम दैट इज ब्रोमीन। और ब्रोमीन क्यों डी दिखाएगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास डी है, बिकॉज ब्रोमीन बिलोंग्स टू विच पीरियड, थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। ठीक है, ब्रोमीन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ब्रोमीन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, थर्ड पीरियड वाला है, तो इसलिए ही ये ऐसा डी शेप दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ प्लेटिनम भी थर्ड पीरियड वाला है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि PCl5 होना चाहिए, क्योंकि 3 4 5। ठीक है, तो ये टोटल होना चाहिए हमारे पास, वी से दिस टोटल 5 इसके सब्सक्रिप्ट में होने चाहिए। ठीक है, एंड देन PF5 PCl5 क्यों इंपॉर्टेंट है, PCl5 के ऊपर क्वेश्चन ऑल्सो, वन क्वेश्चन इज देयर इन द NCERT एक्सरसाइज। ठीक है, तो PCl5 कैसी शेप आता है, PCl5 आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। और उसके अंदर हमने समझा था PCl5 के अंदर हम देखेंगे कि लाइक द 2 काइंड ऑफ द बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट। एक जो बॉन्डिंग होती है एक्सियल, और 3 जो क्लोरीन अटैच होते हैं दे आर इक्वेटोरियल। दैट्स वाई दिस इज नॉट दैट स्टेबल मॉलिक्यूल कंपेयर टू PCl3। ठीक है, तो ये यहीं से हाइब्रिडाइजेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, और जो बॉन्ड लेंथ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड sp3d2 का हमने समझा, BR5 इसका एग्जाम्पल है, और शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल। अब हम एक और बढ़ा देते हैं, एक और बढ़ा के क्या हमें अब क्या ऑब्टेन होगा, sp3d3। ठीक है, sp3d3 ऑब्टेन होगी। अब sp3d जो d3 ऑब्टेन होगी इसकी, या दूसरा इसको हम कह सकते हैं d2sp3। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, बट जो शेप दोनों की होगी, दोनों की शेप होगी ऑक्ट्राहेड्रल मतलब टोटल हाउ मेनी साइड्स हम वी कॉल ऑक्ट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के अंदर कितने 8 साइड्स होती हैं, ऑक्ट्राहेड्रल इसकी शेप होगी। ठीक है, ऑक्ट्राहेड्रल शेप होगी। जो आप कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए टोटल, 6, 5 और 6, SF6 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, SF6, और जहां पे भी 6 आएगा सब्सक्रिप्शन में, वहां पे ये शेप एडजस्ट करेगी। ठीक है, ये sp3d2 होना चाहिए। एंड
So we see like if this is the case, sp3d2 है, sp3d2 है या d2 sp3 है, तो इसकी जो शेप आएगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी. एंड द ब्रोमीन एक्चुअली दिस बिलोंग टू द सेकंड पीरियड, बाय मिस्टेक आई टोल्ड इट इन द इट बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड, बाय मिस्टेक आई टोल्ड इट थर्ड पीरियड, ठीक है, हम लिखते हैं ना. फिर कल बाहर INT, ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये दिस बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली, ठीक है. So these will be the different shapes in this case. And now the formations of PCl5, the formation of PCl5 has given, ठीक है, PCl5 is also written, and on the basis of this there is a question in NCERT exercise 2. And if we understand the formation of PCl5, that actually contains PCl5, तो that belongs to sp3 dehybridizations. तो एक इसके अंदर dehybridizations. अब ये ग्राउंड स्टेट पे अगर हम फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऐसा आएगा ग्राउंड पे. अब what happens, because we just study the 3s is having energy equivalent to what, energy equivalent to 3d, 3s की energy equivalent है 3d के बराबर, तो अपना एक्साइटेड में अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, वो आगे एक्साइटेड हो जाएगा. एंड नाउ एक्चुअली द Cl, हाउ मेनी Cl कैन कंबाइन, 5Cl, क्योंकि एक एक लोन पे एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास प्रेजेंट है फास्फोरस के पास, ठीक है, और क्लोरीन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो शेयरिंग की वजह से 5 बॉन्ड बन सकते हैं. तो द मॉलिक्यूल दैट विल फॉर्म इज PCl5. एंड इफ यू अंडरस्टैंड द PCl5 the shape that or the geometry that comes the trigonal bipyramidal, ठीक है, 2 पिरामिड बने हुए हैं इसके अंदर और ट्राइगोनल शेप है. नाउ द 5 ऑर्बिटल्स जिसके अंदर एक s है, 3p है और एक d है, आर अवेलेबल फॉर द हाइब्रिडाइजेशंस एंड to yield a set of the 5 sp3 dehybridized orbitals which are directed towards the 5 corner of the trigonal bipyramidal, which are depicted by this figure, ठीक है जी. The trigonal bipyramidal geometry of the PCl5 molecule is given, and this should be noted that all the bond angles in trigonal bipyramidal are not equivalent. ये अब याद रखना, सारे बॉन्ड एंगल इक्विवेलेंट नहीं है PCl5 के अंदर. 5 sp3 d orbitals of the phosphorus overlap with singly occupied p orbitals of the chlorine. 5 ऑर्बिटल है फॉस्फोरस की और सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स है किसकी, क्लोरीन की, ठीक है, और क्या 5 बॉन्ड बन रहे हैं, PCl5 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर, राइट. एंड द 3PCl5 ये किसमें, एक ही प्लेन में, ये वाले 3PCl एक ही सिंगल प्लेन में है, ठीक है. एंड जो बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है 120 का, इसलिए सारे बॉन्ड एंगल बराबर नहीं है. इनके साथ बॉन्ड एंगल इनके साथ अगर मैं इसको स्क्वायर के अंदर लाऊं तो इनके साथ बॉन्ड एंगल है 120 का. इनको मैं सर्कल करूं, इफ आई जस्ट ड्रॉ ए स्क्वायर अराउंड दैट बॉन्ड एंगल ओवर हियर इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है. इन दो के साथ बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, इनकी लेंथ भी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस. एंड दैट्स वाई दीज आर टर्म्स एज, जो 120 वाले हैं इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कह देते हैं. PCl जो है, जो एक प्लेन के अंदर अबव है, एक डाउन बिलो द प्लेन है या डाउन द प्लेन है, देन वी कॉल देम इक्वेटोरियल एंड बॉन्ड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री टू द प्लेन of the molecule, and these bonds are called axial bond, as axial bond pairs suffer more repulsive interactions from the equatorial bond pair. तो किसके अंदर repulsive interaction ज़्यादा, axial के अंदर, ठीक है, जो ऊपर नीचे वालों के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा है. and therefore they are slightly longer also and slightly weaker than compared to the equatorial bond, and which make more reactive. This PCl5 is more reactive compared to PCl3. Reason is this: the types of 2 bonds are present over there. And the PCl5 break down to PCl3 upon heating, the region is same, ठीक है. तो जो ये 3 हैं ये ज़्यादा स्टेबल है. ओके, दैट्स इट.